Good morning students. In the last video I have discussed about the pH scale and the pH value of acids and bases. In this video we will discuss about the importance of pH in everyday life. We know that the hydrogen ion concentration or the pH is an important quantity and has significant role in our everyday life in many industrial and biological process. So there are some applications of pH in our daily life are described below. The first one is that plant and animals are pH sensitive. अगर बात करें ह्यूमंस की तो आवर बॉडी वर्क्स एफिशिएंटली विद इन द pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8 मीन्स हमारी बॉडी जो है 7.0 to 7.8 pH रेंज में बहुत एफिशिएंटली वर्क करती है. देयरफॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन दिस pH रेंज. फॉर एन एग्जांपल, in an industrial area the pH of rainwater become less due to the dissolution of some acidic gases such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide etc. किसी इंडस्ट्रियल एरियाज में जब पॉल्यूशन होता है तो ड्यू टू दी dissolution of oxide of sulfur and oxide of nitrogen such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide, these are acidic gases and when they dissolve in the air they react with the water molecules या water vapor present in the air and form acid. ठीक है. So if the pH of rain water is less than 5.6, जब ये एसिडिक ऑक्साइड जो हैं रेन के साथ मिक्सअप होंगे तो जो रेन वाटर है इट बिकम एसिडिक. बट इफ़ द pH ऑफ दैट रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 देन इट इज़ कॉल्ड एसिडिक रेन. तब हम उसे एसिडिक रेन कहते हैं. इट मीन्स जितना ज़्यादा इन ऑक्साइड्स का डिसॉल्यूशन होगा एयर में तो वहाँ जब रेन होगा तो वो रेन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा. सो व्हेन दिस एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर्स it lowers the pH of the river water also. ठीक है. This causes to kill the most of the aquatic life. Therefore the aquatic life in such river become difficult to survive. Clear? The second importance of pH, that is the pH of our digestive system. As we know, our stomach produce hydrochloric acid. When we take food, our stomach produce HCl, hydrochloric acid, which make the food acidic for the digestion. It helps in the digestion of food without harming our stomach. You must also observe that many people complain acidity in our stomach, in their stomach. So acidity तब होता है when the stomach is produce too much acid, और ये तब होता है when there is a problem of indigestion. So during indigestion the stomach produces too much acid and this causes pain and burning sensation in the stomach region. So this stage is called acidity. इसी को हम acidity कहते हैं. So to get relief from this pain and burning sensation, actually we take tablets known as antacids. ठीक है. antacids का हम यूज करते हैं. These antacids mainly contain bases. इन antacids में mainly bases होते हैं which neutralize the excess acid produced in our stomach. ठीक है. So the person which is suffering from acidity, they are also advised to take cold milk which is alkaline in nature. And one more thing, it also advised to take milk of magnesia, which we are called magnesium hydroxide, MgOH whole twice. This is called milk of magnesia. This is a mild base which also used to remove the acidity in our stomach. ठीक है. So next, the pH change as a cause of tooth decay in our mouth. The pH of our mouth is normally more than 7. हमारे माउथ का जो pH होता है वो मोर देन 7 होता है. मीन्स बिकॉज उसका रीज़न है
the saliva produced in our mouth is basic in nature. So however, when we take food, some food particles remain in the mouth after eating. ठीक है, the bacteria present in our mouth produce acid by the degradation of these food particles remaining in the mouth after eating. So जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं वो इन्हीं फूड पार्टिकल्स को जब डिग्रेडेशन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो दे विल प्रोड्यूस एसिड्स. ठीक है, दिस लोअर द pH ऑफ द माउथ. तो जो जनरली माउथ का जो pH है वो मोर देन 7 है, मतलब बेसिक है, अल्कलाइन है, क्योंकि सलाइवा नेचर में स्लाइटली अल्कलाइन होता है. बट जब बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड करेंगे और एसिड प्रोड्यूस करेंगे द pH विल बी लोअर, क्योंकि एसिडिक होने लगेगा, तो द pH ऑफ द माउथ बिकम लेस देन 7. इन दैट केस द माउथ इन द एंड द टूथ, ठीक है, द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5. अगर pH इस केस में लेस देन 5.5 हो गया, द pH ऑफ द माउथ अगर लेस देन 5.5 हो गया, तो दिस विल कॉज टूथ डीके. टूथ एनिमल वी नो दैट इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन आवर बॉडी. इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. हाउएवर व्हेन द pH ऑफ आवर माउथ बिकम लोअर देन 5.5, तो इस pH में क्या होता है, या इससे लेस pH में हमारा टूथ का जो एनिमल होता है विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, इट स्टार्ट कोरोड, उसका कोरिजन स्टार्ट हो जाता है. एंड ग्रेजुअली द एनिमल ऑफ द टीथ इज स्टार्ट ब्रेकिंग. ड्यू टू दिस कंडीशन इज नोन एज टूथ डीके. सो टू प्रिवेंट द टूथ डीके इट इज़ एडवाइज टू क्लीन द माउथ एंड अवॉइड ईटिंग शुगरी फूड. ठीक है, इसके अलावा वी ऑल्सो यूज टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक इन नेचर. ठीक है, एंड विच रिमूव या न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रोड्यूस इन आवर माउथ. ठीक है, ऑन रबिंग. सो दिस विल प्रिवेंट द टूथ डीके. नेक्स्ट थिंग, द सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर. यू हैव सीन बी. द बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन. जब बी हमें काटती है स्किन में, तो एक्चुअली उसके स्टिंग में एक एसिड होता है दैट इज कॉल्ड मेथेनोइक एसिड. ठीक है, so this acid cause pain and irritation. Therefore, to get relief from the pain, a mild base like baking soda. baking soda आपने सुना होगा, बेकिंग सोडा, जो कि एक्चुअली एक माइल्ड बेसिक होता है नेचर में. सो इसका इफ वी रब द बेकिंग सोडा ऑन द अफेक्टेड एरिया वी विल गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड बर्निंग सेंसेशन. ठीक है, सिमिलरली द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल प्लांट. नेटल प्लांट एक प्लांट होता है, नेटल वाइल्ड में ग्रो करता है, नेटल प्लांट. ठीक है, इट हैज़ स्टिंगिंग हेयर विच दीज स्टिंगिंग हेयर कंटेन मेथेनोइक एसिड. इन स्टिंगिंग हेयर में मेथेनोइक एसिड होता है. ठीक है, दिस मेथेनोइक एसिड कॉज बर्निंग सेंसेशन. जब हम एक्सीडेंटली नेटल प्लांट को टच करते हैं, सो दीज स्टिंगिंग हेयर लीव द मेथेनोइक एसिड इन आवर स्किन. दिस विल कॉज बर्निंग पेन. सो दिस कैन ऑल्सो बी क्योर्ड बाय रबिंग विद सोप सोल्यूशन और बेकिंग सोडा. तो इसमें भी अगर आपको रिलीफ लेना है तो वी कैन यूज सोप. ठीक है, बिकॉज सोप्स आर जनरली बेसिक इन नेचर. सोप जो हैं बेसिक इन नेचर हैं. दिस विल न्यूट्रलाइज द एसिड इन आवर स्किन एंड वी विल गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड बर्निंग सेंसेशन. वी कैन ऑल्सो यूज बेकिंग सोडा इन दैट कंडीशन विच ऑल्सो रिलीफ फ्रॉम द बर्निंग सेंसेशन. ठीक है, द स्टिंग ऑफ येलो वास्प. आपने येलो वास्प देखा होगा. द स्टिंग ऑफ येलो वास्प कंटेन एन अल्काली. येलो वास्प के स्टिंग में एसिड नहीं होता है, इसके स्टिंग में एल्काली मीन्स क्या होता है, बेस. ठीक है,
This alkali will also cause burning sensation when the yellow wasp leave the acid in our skin. This will also cause burning sensation. ठीक है, this is neutralized by rubbing vinegar. ठीक है, इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय रबिंग विनेगर और लेमन. ध्यान रखिएगा, बी स्टिंग में लेमन का यूज़ नहीं करना है क्योंकि बी स्टिंग कंटेन एसिड और लेमन ऑल्सो कंटेन एसिड. ठीक है, तो एसिड और एसिड जब आप यूज़ करेंगे तो उससे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा. बट येलो वास्प अगर आपको स्टिंग करता है तो इन दैट केस यू कैन यूज लेमन और यू कैन ऑल्सो यूज विनेगर. ठीक है, विनेगर सिरका जिसे हम कहते हैं कॉमनली इन द अफेक्टेड एरिया विच विल न्यूट्रलाइज द बेस in our skin and we will get relief from the burning sensation and pain. Clear है. Similarly the next thing, the pH of soil. ठीक है, the plant need a specific pH range for their healthy growth. प्लांट जो सॉइल में ग्रोथ करते हैं, सॉइल का भी अपना एक pH होता है, तो प्लांट also required a specific pH range for their healthy growth. ठीक है, so due to the every types of plant, ठीक है, will not grow in every type of soil. Therefore the nature of soil is known first by testing the pH. इसीलिए किस सॉइल में किस तरह के प्लांट ग्रोथ करेंगे, तो फॉर दैट वी हैव टू बी चेक द pH ऑफ आवर soil. Then a particular crop is grown in it. It is also suitable for selecting the fertilizer for a particular crop by knowing the pH of the soil. ठीक है, and last thing, the pH of the plant. I have already discussed about this. ठीक है, the natal plant के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ. क्लियर है. So these are some importance of pH in our everyday life. Now I have written some acids. These are naturally occurring acids. They are also known as organic acid. ठीक है, ये organic acids हैं and their natural sources. First, the citric acid. It is mainly present in citrus fruit such as lemon, orange, etc. ठीक है, ये आपको लेमन, ऑरेंज, ये जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उनमें आपको मिल जाएगा. एसिटिक एसिड, दिस इज ऑल्सो नेचुरली अकरिंग एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन द विनेगर. ठीक है, विनेगर विच वी आर ऑल्सो कॉल्ड सिरका इन हिंदी. लैक्टिक एसिड, इट इज़ प्रेजेंट इन द सोर मिल्क और कर्ड. ठीक है, ये आपको सोर मिल्क और कर्ड में मिल जाएगा. टार्टरिक एसिड, इट इज़ प्रेजेंट इन द टेमराइन जिसे इमली कहा जाता है. यूरिक एसिड प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ एनिमल्स. ब्यूटायरिक एसिड, इट इज़ प्रेजेंट इन द रेंसिड बटर. जब बटर रेंसिड हो जाता है इट ऑल्सो बिकम सोर इन टेस्ट. सो दिस इज ड्यू टू द रेंसिडिटी ऑफ द बटर एंड इट कंटेन ब्यूटायरिक एसिड. नेक्स्ट थिंग, मैलिक एसिड, इट इज़ प्रेजेंट इन द एप्पल्स. ठीक है. ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन द टमाटोज. मेथानोइक एसिड प्रेजेंट इन द आंट स्ट्रिंग, नीटल स्ट्रिंग. ठीक है, आंट स्ट्रिंग में और नीटल स्ट्रिंग में आपको मेथानोइक एसिड मिलेगा. सो दीज आर सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स एंड दीज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ दीज एसिड. क्लियर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द salts. ठीक है, and we will also discuss some important salts which we are used in our daily life. Clear. Thank you.